اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز ہرگز بے مسلمان یعنی مسلمان بنے بغیر مت مرنا، یعنی مرنا ہو تو مسلمان بن کے مرنا، اس کے سوا نہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ایک مفہوم ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ بات ہم اس لیے آج کر رہے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ برائی پھیل جائے، فحش چیزیں پھیل جائے مسلمانوں میں، تو یاد رکھے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ آج ہم نے اس لیے تلاوت کی کہ آج ہم اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کو اور اپنے سماج میں رہنے والے لوگوں کو موبائل استعمال کرتے ہوئے جس کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے ہم اپنی جوان لڑکوں لڑکیوں کو، اپنی مسلم بچیوں کو، مسلمان بچوں کو جس کنڈیشن کے ساتھ ہم موبائل میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام ہو، شادی بیاہ کا پروگرام ہو یا کیسا بھی پروگرام ہو، اس پہ جس طریقے سے اپنی نمائش کر کے میک اپ کے بعد، زیب و زینت کے بعد، پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد کس طرح تصویریں لے لے کر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ یہ سب اسٹیٹس پہ جو لڑکے لڑکیاں جو استعمال کرتی ہے، اس میں ویڈیوز یا کلپ وغیرہ ڈالتی ہے، ان تمام چیزوں کی ایک شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کس طرح بربادی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے آیت کریمہ کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ہی ڈرو، اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرماتا ہے اللہ کے مسلمان بن کر ہی مرنا۔ یہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ یاد رکھیے کہ آج کوئی بھی انسان ایک نیک کام کرتا ہے تو فوراً کوشش کرتا ہے کہ کوئی ویڈیو بنائے، کوئی فوٹو کھینچے اور اس کو اسٹیٹس پہ لگائے۔ یاد رکھیے یہ نیک کام ہے، صحیح ہے۔ اب آپ یہ نیک کام کے بارے میں خالی آپ سن لیجئے کہ قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کیا آیا ہے، پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اگر کوئی بری چیز کو واٹس ایپ اسٹیٹس کرے تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہونا چاہیے۔ نیک کام کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، ریاکاری مطلب دکھاوے کے لیے، جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ تین باتیں آپ سمجھیے اس کو، اور پھر فرماتے ہیں کہ بے شک شرک جو ہے، ریاکاری بے شک شرک ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اگر عبادت وہ اگر دکھاوا کے لیے ہو، وہ اگر ریاکاری کے لیے ہو تو وہ گناہ ہو جائے۔ اب آپ سمجھیے اس بات کو، عبادت گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ عبادت کرنے کے لیے، عبادت اگر وہ آپ دکھاوے کے لیے کریں گے تو آپ کا یہ عمل دکھاوا کے لیے کرنا، یہ جو آپ کی نیت ہے، اس نیت کی وجہ سے آپ کو گناہ ہوگا۔ وہ عبادت سو عبادت ہے، لیکن اگر آپ نے اس میں ریاکاری کی نیت کر لی اور آپ نے دکھاوے کے لیے عبادت کی تو یہ دکھاوا کرنا آپ کے لیے گناہ بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر عبادت میں ریاکاری آ جائے تو اس میں گناہ شامل ہو جاتا ہے، تو بتائیے اگر ہم گناہ دکھاوے کے لیے کریں پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جو عبادت نہیں ہے وہ ہم دکھاوے کے لیے کریں، اس کو ہم چرچا کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ برائی مومنوں میں پھیل جائے تو خیال رہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس بات کو سمجھیے کہ کئی چیزیں آپ کے سامنے آج ہم کو رکھنی ہے کہ انسان یہ جو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، بے شک یہ ایک مفید آلہ ہے، ایک فائدہ مند چیز ہے، مگر یاد رکھیے کہ نوجوان نسل نے اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ اٹھایا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر فرد جانتا ہے کہ موبائل ایک اچھی چیز ہے،
आप अगर उसकी अच्छाई की तरफ देखें, ये एक फायदे की चीज है, पर ज्यादातर लोगों ने इससे नुकसान उठाया है, फायदा कम उठाया है। इस बात को समझिए आप कि आज इंसान कोई नेक काम करता है, किसी मिस्कीन को खाना खिलाता है, किसी यतीम को कपड़ा पहनाता है, किसी मदरसे या मस्जिद में चंदा लिखवाता है, फौरन उसका प्रचार व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए, दिखावा के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम दूसरी जगह फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, सरकार फरमाते हैं, जिसने लोगों को दिखाने के लिए अमल किया, अल्लाह कयामत के दिन उसे जलील करेगा। लोगों को दिखाने के लिए जिसने अमल किया, हमारी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि हम अगर कुछ अमल करें तो वो प्रचार होना चाहिए, लोगों के अमल, लोगों की निगाहों में वो अमल आना चाहिए। जबकि हुजूर ने क्या फरमाया सदका के बारे में कि आप दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। और याद रखिए कि पहले और अब एक बात समझिए, पहले लोग नेकियां छुपा छुपा कर, छुप छुपा कर करते थे। आज नेकियों की मार्केट में कह लीजिए, मोबाइल की दुनिया में कह लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे नेकियों की आज नीलामी हो रही है। आज हम उसको बेच रहे हैं नेकियों को। रियाकारी, आप समझिए कि रियाकारी किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक एक अमल है कि आप इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है कि कल नेकियां लोग छुपकर करते थे, आज हम नेकियों की नीलामी कर रहे हैं। कल गुनाह के लिए इंसान कितना बचता था, आज धड़ल्ले से इंसान मोबाइल में गुनाह करता है। न सिर्फ ऐसे के गुनाह करता है, कल कोई गुनाह करता था तो वो थोड़ा सोचता था, उसको फिक्र होती थी मैंने गुनाह किया। आज फिक्र की कोई बात नहीं, इंसान फखरिया गुनाह कर रहा है, गुनाह करके फख्र कर रहा होता है। पहले इंसान गुनाह करता था तो छुपाता था कि कोई देख ना ले, आज इंसान गुनाह करके लोगों को दिखा, बल्कि ये कह लीजिए कि गुनाह करता ही है लोगों को दिखाने के लिए, नेकी भी लोगों को दिखाने के लिए। मतलब यह है कि अब मुसलमान जो अमाल करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए। और यही असल जड़ है गुनाह की, यही बुनियाद है। अगर हम दिखावे के लिए कोई अमल करते हैं तो इस्लाम कहता है कि फिर ये रियाकारी है, और रियाकारी शिर्क है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये रियाकारी बहुत बड़ा गुनाह है। हम व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए हम यही करते हैं कि हम हर अपनी नेकी को, अच्छे काम को दिखावे के लिए हम मोबाइल पे लगाते हैं। वरना आप समझ लीजिए, एक तो यह है कि हम अगर आप अच्छी चीज लगाते हो तो ये हुक्म है, उसके बारे में ये सब है। आप समझिए इस बात को, दीन का मिजाज देखिए जरा आप इस्लाम का मामला समझिए। आप इस्लाम क्या कहता है, हम अभी नेकियों की बात कर रहे हैं। आपने नमाज पढ़ी, उसका कुछ चर्चा किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने रोजा रखा, इफ्तारी करी, इफ्तारी कराया, किसी गरीब की मदद की, किसी मिस्किन को खाना खिलाया, किसी यतीम को आपने कपड़ा पहनाया, किसी मदरसा मस्जिद में आपने चंदा दिया, कोई और नेक अमल किया, आपने नेक काम किया, उसको आपने स्टेटस पे लगाया, तो उसकी बात हो रही है कि रियाकारी है, शिर्क है, गुनाह हो रहा है, ये उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर हम गुनाह कर रहे हैं, अगर हम किसी गाने को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं, अगर हम किसी फिल्मी क्लिप को हम व्हाट्सएप पे लगाते हैं, अगर हम किसी और बुरी गंदी तस्वीर को व्हाट्सएप पर लगाते हैं, कोई इश्किया शेर, कोई नाजायज शेर, कोई ऐसी बात जो खिलाफ शरा हो, उसको हम लगाते हैं, बताइए फिर इसका क्या होगा। अगर हम नेकियों का दिखावा करें तो इतना बड़ा गुनाह हो रहा है कि रियाकारी है, शिर्क है। आप समझिए इस बात को, रियाकारी है। रियाकारी गुनाह की किस्म है, नेकियों के लिए हुक्म है। तो फिर अगर हम कोई फिल्मी क्लिप को लगाए, अगर हम किसी गाने को लगाए, अगर हम किसी गंदी तस्वीर को लगाए, हम गंदी शेरो शायरी को लगाए, हम कोई और गंदी चीज खिलाफ शरा जो नाजायज पर मुश्तमिल कोई चीज अगर उसको हम व्हाट्सएप पे लगाए, तो फिर बताइए कि इसका वबाल कितना बड़ा होगा, इसका गुनाह किसके सर पर होगा। बात यही तक महदूद नहीं। अब एक बात समझिए, सबसे पहले हजरत आदम की औलाद में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। ये जुर्म सबसे पहले काबिल ने किया जो हाबिल को किया था, कत्ल किया था। कत्ल का जुर्म सबसे पहले काबिल ने किया। अब कयामत तक जो भी इंसान किसी इंसान को नाहक कत्ल करेगा, अभी अगर आज कोई कत्ल करता है तो कत्ल करने वालों को जितना गुनाह होगा सो होगा, मगर इसका गुनाह बिल्कुल उतना ही काबिल को भी होगा जिसने ईजाद किया था, जिसने सबसे पहले ये कत्ल किया था, ये जुर्म किया था, ये सबसे पहले जिसने ये गुनाह किया था। अगर कोई इंसान किसी गुनाह को ईजाद करता है और फिर ईजाद करने के बाद जो उसको ईजाद करने का गुनाह होगा सो होगा, लेकिन अब उसके बाद उसका देखा देखी कयामत तक जो भी उस गुनाह को अंजाम देगा तो वो गुनाह करने वालों को गुनाह तो होगा ही, मगर जिसने ईजाद किया था उसको भी गुनाह होगा। तब आप समझिए कि जो हम व्हाट्सएप स्टेटस जो हम लगाते हैं,
कभी गाने की शक्ल में, कभी नाजायज शेरो शायरी की शक्ल में, कभी फिल्मी क्लिप की शक्ल में, कभी किसी गंदी तस्वीर की शक्ल में, कभी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, कभी किसी को तकलीफ देने के लिए। अगर हम कोई गाना लगाते हैं, कोई फिल्मी क्लिप लगाते हैं, कोई नाजायज चीज हम व्हाट्सएप पे लगाते हैं और उसको देखकर किसी ने लगाया, फिर उसको देखकर किसी ने लगाया, ऐसे अगर 1 करोड़ लोगों ने अगर लगाया आपके देखा दिखी, यानी आप अगर सबब बने इस गुनाह के, तो आपने जो लगाया था वो जो गुनाह होगा सो होगा, वो हो रहा है गुनाह। लेकिन अब आपके देखा देखी, आपके पैरवी करते हुए, आप पर आपके दिखाने की वजह से आपने जो लोगों को एक नजरिया दिया, अब उसके बाद जितने लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, जितने लोग उसको अपने स्टेटस पर रखेंगे, उन सबको तो गुनाह होगा ही, उनके बराबर बगैर एक छटांग कम किए हुए जिसने सबसे पहले उसको लगाया है उसको उतना ही गुनाह होगा। बताइए कितना बड़ा जुर्म है। इसको हम बिल्कुल आसान सी बात समझते हैं। अब सबसे पहले समझिए, हमको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन स्टेटस का हम जो मतलब समझ रहे हैं, मतलब यह है कि हमारा किरदार, हमारा स्टेटस मतलब हमारा किरदार, यानी हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस मकसद के तहत जी रहे हैं, हमारा ईमान क्या है, हमारा अमल क्या है, हमारा अकीदा क्या है, ये हमारा स्टेटस है। हम इसको मोबाइल में दिखा रहे हैं, एक गंदी फिल्म की शक्ल में, एक गंदी क्लिप की शक्ल में, एक गाने की शक्ल में, एक फोटो की शक्ल में, एक गंदी तस्वीर की शक्ल में हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारा अमल क्या है, हम लोगों को बता रहे हैं कि हम क्या ख्याल करते हैं, हम लोगों को बता रहे हैं हम क्या सोचकर दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारे अंदर अमल का कौन सा मामला पाया जाता है, किस तरह का मादा है हमारे अंदर, हम कितने नेक हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। ये सोचने की बात है। हम किसी क्लिप को लगाते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि एक गाना है। सिर्फ गाने का मसला नहीं है, इंसान सुन लेता है तो सिर्फ उसको सुनने का गुनाह होता है, लेकिन अगर आपने किसी को सुनाने के लिए स्टेटस पर आपने गुनाह लगाया तो आपको जो लगाने का गुनाह होगा वो अलग। अब अगर आपके देखा देगी 1 करोड़ लोग अगर उसको लगाते हैं, या 10-20 लोग, 500-700 लोग भी अगर लगाते हैं, तो उन तमाम को जितना गुनाह होगा उतना गुनाह आपको भी होगा। ये कितना खतरनाक है। आज हम इससे और हटकर देखें, कुरान ने क्या कहा है। आज हमारी माएं हैं, बहनें हैं, मुस्लिम बच्चियां, हो सकता है आपकी ना हो, सकता है हमारी ना हो, लेकिन किसी की है, कभी शादी ब्याह का प्रोग्राम हो और इस तरह का कोई भी, किसी तरह की कोई भी रस्म हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हम उसमें अपनी बच्चियों को देखते हैं, मुसलमान बच्चियों को, चाहे यहाँ की हो या कहीं की हो, कि वो मेकअप करने के बाद, सजने संवरने के बाद, सजने धजने के बाद वो क्या करती है, वो एक फोटो खींचती है या वीडियो क्लिप बनाती है, किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो, और फिर उन चीजों को जो है लोगों को दिखलाती है व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए। बताइए कुरान क्या कहता है, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और औरतें अपनी जीनत को हरगिज हरगिज जाहिर ना करें। एक औरत को सिर्फ अपने शौहर के लिए ही जीनत करने का हक है, बाकी किसी दूसरे मर्द के लिए हरगिज नहीं है। आज हमारी बच्चियां शादी ब्याह के मौके पे, किसी तरह कोई राहो रस्म का, रस्म रिवाज का मामला हो, वहां पे फोटो खींचने के बाद, वीडियो बनाने के बाद हम उसके क्लिप्स को, हम उसकी उन तस्वीर को, जो कि किसी को दिखाना जायज ही नहीं है, हम उसको लगाते हैं। बताइए क्या उन बच्चियों के बाप नहीं है, क्या उनके भाई नहीं है, क्या उनकी नजर नहीं पड़ती, क्या उनके अंदर दीनी गैरत नहीं है, क्या उनको मना नहीं करना चाहिए कि ये क्या कर रही है हमारी बच्चियां। आप याद रखिए कि गुनाह अगर आपकी बच्ची करती है तो सिर्फ जिम्मेदार आपकी बच्ची नहीं है, हिसाब आपसे भी होगा, हिसाब आपसे भी होगा। अल्लाह के नबी ने साफ साफ फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार सुन लो, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप अपने बेटों का जिम्मेदार है, अपनी बीवी का जिम्मेदार है, भाई अपनी बहन का जिम्मेदार है, शौहर अपनी बीवी का जिम्मेदार है, माँ अपने बेटों की जिम्मेदार है। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, शौहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा, भाई से बहन के बारे में पूछा जाएगा, बाप से बेटी के बारे में पूछा जाएगा, बाप से बेटे के बारे में पूछा जाएगा। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी कल कयामत के दिन पूछी जाएगी। आज हम देख रहे हैं अपने नौजवानों को, अपनी जो ये नस्ल है, हम अपने नौजवानों को देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि कयामत के दिन किसी के हाथ में नामा आमाल देना एक अलग मामला है, वो जो देना है, जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा। मैं समझ रहा हूं अगर सबके हाथ में खाली मोबाइल दे दिया जाए और उसका हिसाब किताब शुरू हो जाए, शायद हम फंस के रह जाए। और शायद क्या यकीन के साथ कह रहे हैं, ये नामा अमाल वो अलग है, वो रहने दीजिए जो फरिश्तों के कब्जे में है, जो अल्लाह हर शख्स के हाथ में देगा वो अलग है, लेकिन सिर्फ मोबाइल अगर दे दिया जाए और इसी पर आपका हिसाब किताब हो जाए तो हमें लग रहा है कि और आपके नामा अमाल की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। ये ऐसा अभी हम इस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, हम कहां जी रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको किस तरीके से एक मुसलमान को किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से बुराइयों को फरोग दे रहे हैं। याद रखिए कि आप अकेले कोई गुनाह करते हैं
कोई आप अंधेरी जगह पे छुप कर गुनाह करते हैं, उसका गुनाह सिर्फ आपको होता है। और अगर आप ऐसा और इस तरीके से गुनाह करते हैं कि आप दूसरों को गुनाह हो कि ये व्हाट्सएप पर गाना लगाना, फिल्मी क्लिप्स लगाना, गंदी तस्वीर लगाना, गंदी शेरो शायरी लगाना, ये क्या है? ये सिर्फ गुनाह करना नहीं है, साथ में दूसरों को गुनाह की दावत देना भी है, साथ में दूसरों को गुनाह की तरफ बुलाना भी है। इंसान समझता नहीं है एक एक वक्त इंसान किस तरीके से गुजारता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों को कि वो सुबह से लेकर शाम तक, यानी सुबह उठते ही फौरन मोबाइल, और शाम में सोते वक्त जब तक नींद न लग जाए 3-4 बार तो मोबाइल हाथ से छूट छूट के गिरता है, तब जाके इंसान सोता है। यानी स्टेटस से शुरू किया था, स्टेटस पे खत्म। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे स्टेटस लगाता है, जो थोड़ा सा दीनदार किस्म का है कि फजर की नमाज पढ़ने से चेहरे में नूर आता है, और सुबह 10 बजे तक बंदा सोया रहता है। इस तरह की स्टेटस लगाने के बाद सोचने की बात है, आज हर इंसान का 2 चेहरा है, 2 चेहरा। एक वो चेहरा जो मोबाइल में है, जो स्टेटस में है, व्हाट्सएप स्टेटस पे, बिल्कुल मजहबी आदमी, पक्का मुसलमान, सबसे ज्यादा अखलाकमंद आदमी, बहुत ही शरीफ मिजाज, बहुत अच्छी जबान का मालिक, बहुत खूबसूरत आदमी, दाढ़ी वाला, बहुत नेक इंसान, जैसे हज उमरा करके आया हो। एक हकीकत की जिंदगी, बिल्कुल लापरवाह, एकदम गफलत शियार आदमी, एकदम बेपरवाह आदमी, ना नमाज की फिक्र, ना रोजे की फिक्र, ना माँ बाप से कोई मतलब, ना बीवी बच्चों से कोई लेना देना, एकदम मोबाइल बाज आदमी। अब देखिए ना किस तरीके से है, व्हाट्सएप स्टेटस पे देखिए तो पक्का मजहबी आदमी, पक्का अखलाकमंद, एकदम नमाजी। जुमा का दिन आप सुबह उठिए, सबसे ज्यादा ऐसे लोगों के स्टेटस पे जुमा मुबारक, दुरूद शरीफ पढ़ना नेक काम है, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। आप समझिए इस बात को, ये वो चेहरा है। वही आदमी जुमा के दिन कब आएगा? जब इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है, जुमा के दिन ये होना चाहिए, ये नेक अमल करना चाहिए, और वो खुद कितने बजे आ रहे हैं? जब इमाम खुतबा के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सोचने की बात है, हम कहां जी रहे हैं? हमारी स्टेटस की जिंदगी अलग है और हकीकत की जिंदगी अलग है। ये दूर की जिंदगी से इंसान जब तक बाज नहीं आएगा, ना दुनिया संवरेगी, ना आखिरत बन पाएगी। याद रखिए, इससे निकलने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं अपने नौजवानों को इस तरीके से। याद रखिएगा कि कल मैदान मशर में कुरान ने साफ साफ कह दिया है, वह सुहुफ नुशिरत, जब नामा अमाल खोले जाएंगे, फिर उसके बाद जब नामा अमाल खोले जाएंगे, फिर उस वक्त आप ये कह नहीं सकते कि हमने ये गुनाह नहीं किया है। इसीलिए इंसान अगर सिर्फ फराइज को सिर्फ अगर इंसान अदा करे और उसके बाद इंसान सिर्फ गुनाहों से बच जाए, तो यही नहीं कि बहुत हो जाएगा इंसान के लिए। मगर हम देख रहे हैं कि आज मोबाइल के जरिए, मोबाइल एक कार आमद, एक मुफीद आला था इंसानों के लिए, मगर आज सबसे ज्यादा इससे इंसान ने उतना नफा नहीं उठाया जितना नुकसान उठा लिया इंसान ने। आज हमारी नौजवान नस्ल है, खास करके आप देखिए हमारी बच्चियां, हमारे जवान बच्चे, जवान बच्चियां हमारी जिस तरीके से मोबाइल में महव है। अब आप समझिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया कि ये मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे बाद में कि जो ज़िनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाना बजाना, इन तमाम चीजों को हलाल समझ लेंगे। कुछ लोग पैदा होंगे। आज हम देख रहे हैं कि गाना, ये फिल्मी, ये नाच नचनिया, ये कितना आम हो गया है। ये गुनाह किस कदर आम हो चुका है, आज आप देख सकते हैं। आज आप मोबाइल अगर आप खोलेंगे तो आप कैसा भी नेक नियत से, कितनी भी अच्छी नियत हो आपकी, आप मोबाइल खोलिए, आप मजबूर होंगे देखने के लिए। आपके सामने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गंदी तस्वीर, कोई ना कोई गंदी एड्स आ ही जाएगी। देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा। ये ऐसा माहौल है, ऐसे वक्त में इंसान जितना इससे बचे उतना ही बेहतर है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंसान अपनी स्टेटस का मतलब अपना किरदार, वो किस तरीके से इंसान दूसरे को समझाता है। और इससे ज्यादा जो है एक सोचने की बात है, जो बात हमको आज तक समझ में नहीं आई। मोबाइल में जो है कलर टोन, यानी आप किसी को फोन करिए तो या तो घंटी बजेगी या नाद बजेगी या गाना। अब आप समझिए, ये अजीब गरीब गुनाह है, मतलब ये गुनाह है, बेलज्जत है। कलर टोन आपने लगाया, गाना बज रहा है, अब 100 लोग आपको फोन कर रहे हैं, 100 आदमी गाना सुन रहे हैं, उन 100 को जो गुनाह हो रहा है, आपको भी गुनाह हो रहा है, पर आपको कोई लज्जत मिली? वो जो गाना सुन रहा है, सुन के थोड़ी सी उसको लज्जत तो मिल रही है, एक उसको मिजाज में एक कैफ, एक सुरूर, एक मस्ती है कि गाना सुना, उसको थोड़ी लज्जत मिली, गुनाह वहां लज्जत तो है। मगर जिसने कलर टोन लगाया वो तो सुन ही नहीं रहा है बेचारा, मगर कितना बेवकूफ है, सुन कोई और रहा है, गुनाह इसको हो रहा है। ये क्या मिजाज है? सबसे बड़ी बात, मैं आपके सामने एक बात रखूं तो आप कहेंगे कि ये रिश्ते की बात कहां से आ गई। एक आदमी का सिर्फ रिश्ता इस वजह से खत्म हो जाता है कि उसने मोबाइल में कलर टोन रखा था, जब लड़की वालों को पता चला सारी बातें हो गई। उसने कहा इतना बेवड़ा लड़का, इतना लफंगा कि जो स्टेटस पे इस तरीके से गाना लगाए, वो आगे चल के करेगा क्या? रिश्ता खत्म हो जाता है। अब आप समझिए, फिर उसके बाद हमारे नौजवान बहुत परेशान रहते हैं।
हमने यहाँ लड़की देखा, वहां रिश्ता किया, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ नहीं कहता है। आपके बारे में सारी व्हाट्सएप पे है, फेसबुक में किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अभी लोग बदगुमानी की तरफ ज्यादा है कि हमारे बारे में फुला शख्स ने फुला कुछ कह दिया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। वो फुला कहने की वजह से नहीं, वो व्हाट्सएप और फेसबुक ने कहा है। दूसरों को बदनाम मत करो। व्हाट्सएप पे आपके सारे काले चिट्ठे हैं, फेसबुक में आपके सारे काले चिट्ठे हैं, सब कुछ तो है, किसी को कुछ कहने की जरूरत कहाँ है? फिर उसके बाद पछतावा होता है। अल्लाह के यहाँ जो हिसाब देना होगा वो अलग, हिसाब दुनिया ही से शुरू है। आप समझिए इन चीजों को कि हम मोबाइल को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल एक बेहतरीन आला है, बशर्ते कि आप उसका सही इस्तेमाल करें, आप एक सही हुदूद में रहकर आप इसका इस्तेमाल करें तो बेशक ये मुफीद आला है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी नस्ल, हमारे नौजवान बच्चे, हमारी नौजवान बच्चियां सबसे ज्यादा जो है मोबाइल से नफा की बजाय नुकसान उठा रही है। नुकसान सबसे ज्यादा यहां से लिया गया है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हम गुनाह कई तरह के हैं, एक गुनाह हुआ है जैसे हमने गाना सुना, आपने गाना सुना, गाना सुनने के बाद आपको एक लज्जत हुई, गुनाह हुआ एक अलग है। मगर कुछ गुनाह हुआ है जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, लज्जत कुछ नहीं है पर गुनाह हो रहा है। आपने गाना उठाया, उठा के व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस पे लगा दिया, सुन कोई और रहा है, लज्जत कोई और हासिल कर रहा है, उसको सुनने का गुनाह हो रहा है, वो अलग है। पर आपको लगाने की वजह से अगर 1000 आदमी भी देखे तो 100 आदमी का गुनाह आपको हो रहा है। कभी आपने गौर किया? बताइए इसी हालत में मौत हो जाए, इसका क्या होगा? आप समझिए इन चीजों को। बेशक आप मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। आज व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए इस तरीके से आज बुराइयां फैल रही है। हम देखते हैं कि किसी के यहाँ शादी ब्याह कुछ इस तरीके से हो तो ये चीजें सबसे पहले आती है। मुस्लिम हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को आज कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वो बाप कहाँ है, वो भाई कहाँ है, वो माँ कहाँ है? या गैरत नहीं है? आप मना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मना कर सकते हैं। हम यहां से किसी की बहू बेटी को मना थोड़ी कर सकते हैं। हम मस्जिद में बोलेंगे, मस्जिद की बात मस्जिद में रह जाती है। कौन जाके बताता है? कोई जाके थोड़ी बताता कि आज जुमा में ये बयान हुआ तो इससे इंसान परहेज करे। ये ऐन वक्त पे जहां जुर्म हो, जब जुर्म हो वहां और उसी वक्त पकड़ने की जरूरत है, वही इस्लाह की जरूरत है। जब तक आप ये करेंगे नहीं, ये बुराई बहुत आम होती जा रही है। आज इंसान सबसे ज्यादा जो है नेकियां कहीं कहीं पे, अब नेकियां भी नेकियां नहीं रही है। अब आप समझिए इस बात को। मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप नेकियां करके व्हाट्सएप पे स्टेटस करते हैं, अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी नेकी को डालते हैं तो ये नेकी आपकी रिया में तब्दीली हो जाती है और रिया शिर्क है, गुनाह है। अब आप समझिए। बताइए जो नेकी किया था आपने वो भी खत्म कर दिया। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने नियत अच्छी करी, नियत आपकी साफ है, दिखावा मकसद नहीं, मकसद यह है कि ताकि किसी मुसलमान को जज्बा पैदा हो जाए। हमने ये इसलिए लगाया, हमने ये वीडियो क्लिप इसलिए की, ये हमने कोई फोटो इसलिए लिया, हमने इसका प्रचार इसलिए किया ताकि और कोई दूसरा मुसलमान भी दीन के नाम पर आगे आए, वो भी कुछ खर्च करे, वो भी गरीबों यतीमों की मदद करे। तो ये एक अलग मसला है। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल आपका वीडियोग्राफी या किसी तरीके से ये कह लीजिए कि कोई फोटो वगैरह या किसी नेक काम के लिए उसका सबूत या कुछ, हर तरीके से यानी बिल्कुलिया मना ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान इसलिए करता है ताकि कोई मुसलमान इससे सीखे, कोई मुसलमान इससे सबक ले, तो अलग मसला है। वरना हम देख रहे हैं कि अक्सर की नीयत ये नहीं कि कोई सीखे, अक्सर की नीयत यह है कि हमने आज 10 मिस्किनों को खाना खिलाया तो इसका चर्चा होना चाहिए, आज हमने 5 यतीमों को कपड़ा पहनाया तो इसका कुछ बाहर चर्चा होना चाहिए, आज हमने ये नेकी की तो इसका होना चाहिए। हद तो यह है कि इंसान हज उमरा के लिए भी जाता है तो सारी इबादतें बाद में, इंसान अभी पहुंचा नहीं है। खाना काबा पर जब पहली नजर पड़े तो इंसान को पहले वो दुआ मांगनी चाहिए कि बताया जाता है, हदीस पाक में है कि जब आप खाने काबा के सामने जब आपकी पहली नजर पड़ती है तो आप जो दुआ करेंगे वो दुआ कबूल हो जाएगी आपकी। अब आप समझिए इस बात को, जो दुआ कबूल हो जाएगी। आज इंसान जाता है तो हमें नहीं लग रहा है कि दिमाग में हुआ है। सबसे पहले यही होता है कि हमको एक व्हाट्सएप एक क्लिक बनाना है, एक क्लिप बनानी है, क्लिप बना के एक फोटो लगाना है और फौरन व्हाट्सएप स्टेटस करना है। ये क्या है? अपनी नेकियां लोगों को दिखाने के लिए की कि अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी की खातिर। आज इंसान नेकियां भी करता है तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं, बल्कि नेकियां भी करता है तो इंसान को दिखाने के लिए। और जहां बात दिखावे की आती है वहां नेकियां जो है बर्बाद हो जाती है। नेकियां दिखावे के लिए नहीं बल्कि छुप कर की जाती है। सरकार ने जो फरमाया कि एक हाथ से सदका दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इसका यह मतलब नहीं कि बात सिर्फ सदके की है, वहां तक समझ लेना। ये आपकी कमफहमी है, या आप नहीं समझ पा रहे हुजूर के फरमान को। हुजूर का फरमान बहुत वसी है। यहां मतलब यह है कि आप एक नेकी करो, नेकी इस तरीके से करो कि आपके एक हाथ को खबर ना हो। क्या मतलब है? मतलब यह कि अपने आप में किसी तरह कोई फख्र गुरूर कुछ ना हो, किसी तरह कोई दिखावा ना हो। अगर अपने साथ ना हो तो फिर क्या व्हाट्सएप स्टेटस में इस चीज की इजाजत है? अब आप समझिए, ये हदीस पाक मैं आपके सामने रखूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हुजूर फरमाते जो औरत
खुशबू लगाकर मर्दों के सामने निकले वो जानिया है, जना करने वाली है। अब आप समझिए, अब इस बात को समझिए, फिर जो औरत है बनाव सिंगार के बाद, शादी ब्याह के मौके पे रस्म रिवाज के बाद फोटो खींचकर, वीडियो क्लिप बनाकर जो व्हाट्सएप स्टेटस करती है और तमाम मर्दों को दिखलाती है, इसका क्या होगा? बताइए, इसका वबाल किसके सर पे होगा? इस हदीस पाक की रोशनी से समझिए, फिर ऐसी औरतों को, ऐसी बच्चियों को क्या कहा जाए? अब आप समझिए इस बात को, ये बहुत गौर फिक्र का मामला है। इसकी वजह से समाज में बुराई आ रही है। तो व्हाट्सएप स्टेटस, इसको आप समझिए। उसी तरीके से कलर टोन, मोबाइल की घंटी, इन तमाम चीजों को क्या करने के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए या 2 या 10-20 सेकंड के लिए जो इंसान हजारों हजार गुनाहों को मोल लेता है। इन चीजों से परहेज करें, कोशिश करें कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ये फायदे की चीज है, एक फायदा मंद आला है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करें और शरई हुदूद और दायरे में रहकर इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल से बचें। और इसमें याद रखिए कि आज की ये पूरी तकरीर ये सिर्फ हमारे नौजवानों और बच्चों के लिए है। बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को इस तकरीर से कोई मतलब नहीं है। बस इतना मतलब हो सकता है कि वो जब किसी को देखे तो जहां तक वो मना कर सकते हैं, जितनी ताकत हो वो मना करे, वो रोके गुनाह से। बोलने में लग्जिश हुई, इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक ऐलान, सिर्फ 1-2 मिनट आप समाप्त कर ले। 2